Hello, good evening, everyone. Dilip, we give 5 more minutes. In mute, so we have to wait to the first day. So you can wait some time. Guys, in the meantime, if you have anyone, if you need to give your intro and all the things, so And everybody is able to see my screen, right? You can also raise your hand if you want to ask any questions so that I will know. And then you raise your hand, you unmute, and then you ask the question. Welcome, everyone who has joined here. Quick poll. Are you all in the final year of your course, like BTech or MCA, or are you in third? So we'll get to know more about you guys. So we do have the portal, so where you will be filling more your details and your profile. So we'll know a lot more about you once you onboard the process. So let me give you an overview of what we are trying to accomplish. I know Dilip has already shared the program details with you. Not sell anything in this webinar. This is your live internship and training program. If we continue, two things I want to make very clear, as you see on my screen. Number one, there is no payment for the training program. So 150 hours of class, 75 lectures, 2 hours every day. You will get in-depth hands-on training in all the AI, ML preparations that you need for job, right? चाहे data science हो या business analytics or data analytics, machine learning, जनरेटिव एआई, रैक पाइपलाइन बिल्डअप करने का तरीका या कुछ भी है, all of that training is completely free. All the trainings are live in the interactive mode, so you have the opportunity to ask your doubts, your questions. I'll show you the whole curriculum, like किस दिन हम क्या पढ़ेंगे, and you can see all of this on your learning portal as well. Yes, there's no cost to the program, so be completely free, but there is a commitment that is required on your side. You have to maintain a 90% attendance rate. So if there are 10 classes, you have to at least attend 9 out of that. So as long as you are attending the classes, and we will keep a track of your attendance at every month, in the end of the month, if you are maintaining your 90%, the training and everything will be available to you. So your access will not get blocked. But if your attendance falls below 90%, then your ID may be blocked and then you will lose the access to the course and the recorded material, okay? Then you may not receive the certificate as well. Attend the classes, you continue, you complete the 150 class. At the end of the training program, you learn, you keep the knowledge with you, you get a certificate, no obligations, completely free, no money would be asked in any way. Then the second component is if you are putting in 5 to 6 hours effort on a daily basis after the classes, and this includes the assignments, lab tasks, GitHub repositories, you'll get the details of the program jo banana hai, right? Self-paced, so you can do it remotely. You can do it from your like your home and at your comfort. But the idea is you have to complete the tasks. As long as you complete the task, you will get your internship certificate. Training certificate you get when you complete the classes. Internship certificate you get when you do all your lab assignments up to 70%. So if there are 10 tasks assigned to you, you fulfill at least 7 of them. As long as you do that, you will get your internship certificate of 6 months from Syskriti Private Limited. नो ऑब्लिगेशंस, नो फी फॉर दैट. आपसे उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. द थर्ड पार्ट इज will help you find a job, and this job placement we will try to get you as soon as we feel you are ready. So we will know based on your submission, based on your task completion, we will know whether you are ready or not. अगर आप GitHub रिपोजिटरी लिख रहे हो, प्रोग्राम आपसे बन रहा है, आपके प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस हो रहा है, it is visible to us on the website. So that's when we will internally qualify you for the placement assistance. When we get you a job, आप अपने से जॉब ढूंढ लो, we don't take anything. तो आप हमसे ट्रेनिंग फ्री में ले लो, सर्टिफिकेट फ्री में ले लो, और जॉब खुद से मार्केट में ले लो. You don't pay us anything, okay? What we expect from you is to write testimonials, your experience,
and on social media जो हमारे pages हैं, you write your experience there. Because at least that's the expectation we will have. अगर आप अपने से job आपको नहीं मिल रही है and we are helping you find the job, in that case, we will definitely take a deferred commission or a fees, which will be after you get the joining letter. जब आप join कर लेते हो, उसके बाद हम फर्स्ट महीने में आपकी सैलरी का 50% और सेकेंड महीने में सैलरी का 50%. सो वी चार्ज 1 month ऑफ योर ग्रॉस सैलरी एंड दैट इज ओनली व्हेन वी गेट यू प्लेस्ड. आप अपने से जॉब पाते हो, नॉट यू डोंट हैव टू पे. आई होप द प्रोग्राम इज क्लियर and this is not a marketing. We will start onboarding the process. If you have any question until here, I will happy to answer. नहीं तो फिर we will go in detail about कि कैसे onboard करना है, कैसे login करना है, and all of those things. Introduce little bit about Sri Prakash Singh. He's having around 18 years of rich experience. He's the world top influencer of the AI field. He's in the world is coming in the list of top 100. So you know how is the profile. He keep the classes, all classes in the evening time in our time, but he is in the morning in the US, right? Yeah. So things I assure you, if you people will do 2 hour training over here, then if you can work around 5 to 6 hours daily in your home, you will do your practice. Definitely you will feel difference within a month. Yes, you don't have to have any prior knowledge of AI, ML, or data science. However, these fields are a little bit complicated. If you are able to use AI, see, today you are living in a wonderful time. Knowledge आज की डेट में बहुत easily available है, and there are a lot of AI tools that will help you learn faster, and we will teach you from the basics. So it may be like you have to do more hard work. अगर जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, जो AI ML में BTech MCA कर रहे हैं, दे हैव लर्न अ लॉट, राइट. उन्होंने भी 4 साल पढ़ाई किया है, सो दे नो द फंडामेंटल्स. तो उनके लिए चीज़ें पढ़ना, समझना, प्रैक्टिकल करना इजी होगा. आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट इफ़ यू पुट इन एफर्ट, द गाइडेंस इज टू मेक यू एबल टू डू इट, तो आप कर लोगे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कहीं से ऑनलाइन क्लास करके जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कोई प्रोग्राम कहीं पे अटक जाता है, तो उसको डीबग करने में आपका ज़्यादा समय जाता है. यू गेट स्टक, राइट. यू रन समथिंग, इट्स नॉट रनिंग. तो वो सारी चीज़ें हम लोग रियल टाइम पे उसको विल सी. तो आप अपना गिटहब रिपोजिटरी शेयर करेंगे, विल सी वेयर किस लाइन पे क्या एरर है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ गाइडेंस. सो डोंट वरी अबाउट नॉट एबल टू डू थिंग्स. आप कर लोगे, प्रोवाइडेड मेहनत आपको करना है. मैं आपकी जगह पे मेहनत नहीं कर सकता. मतलब एवरीबडी विल वर्क फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ. एक क्वेश्चन आप लोग पूछे नहीं हो, बट बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द गारंटी फॉर द जॉब. आज की तारीख में आप अपने आप से पूछो, व्हाट इज योर रेडीनेस टू गेट द जॉब. अगर आज की डेट में आप इंटरव्यू देते हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके इंटरव्यू क्रैक करने का. और इंटरव्यू में 3-4 राउंड होते हैं. आपका प्री स्क्रीनिंग राउंड होगा, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर आपका हायरिंग मैनेजर के साथ इंटरव्यू होगा, और हो सकता है हायरिंग मैनेजर के बाद एक बार सीनियर लीडरशिप कंपनी में कोई हो, उसके साथ आपका 3 से 4 राउंड इंटरव्यू होते हैं. विल टीच यू कि हर राउंड में आपको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है. बट अगर आज की डेट में आपको लगता है कि वो नहीं हो रहा है, तो you put in your hard work, we will put our mentorship, we will put our guidance, because only incentive that we have with you is once you get the job through us, we get paid, right? Let's go further understand. So Dilip introduced about myself. Let me introduce about him, because आप लोग दिलीप से ज़्यादा बातचीत करते हो. He is our India delivery head. He is working with HCL right now and more than for 18 years. तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है. करियर हम लोगों ने लगभग एक ही साथ शुरू किया था, दिलीप ने और मैंने. एंड वी डिड स्टडी फ्रॉम सेम कॉलेज. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंडिया में, ही इज़ देयर टू हेल्प यू. एंड देन वी हैव फ्यू टीम मेंबर्स जो संस्कृति के लिए काम करते हैं. टू गिव यू मोर आइडिया, वी आर इन 3 काइंड ऑफ बिजनेस: कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग बिजनेस, एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज. तो स्क्रीनशॉट और वो लेने का आप मत सोचो, यू विल गेट इट
Everything will be on your learning portal. Are you guys comfortable with your learning portal? आप कैसे access करते हो? Any challenge? Let me quickly walk you, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आपका आपके लर्निंग पोर्टल पे ही जाएगा। जब आप संस्कृति पे लॉग इन करते हैं एंड यू गो टू योर अकाउंट, मतलब मैं लॉग इन हूँ। Sorry, guys, Yeah, class is raise your for hand. you only. Yeah. This class is for you only, right? और हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, राइट? जब आप एक हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद आप जब इस क्लास से जब आप करके जाएं, तो आपको अपनी क्लास में अपने दोस्तों के बीच में एक क्लियर गैप दिखना चाहिए। दिस इज आवर प्लान। हमारा प्लान ये है, फॉर दोज हु डिडंट गेट द जॉब, जिनकी भी नौकरी लगी है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपको आपको जॉब में चीजें दी जाती हैं, सेम उसी पैटर्न पे चीजें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। हम आपसे प्रोजेक्ट कराएंगे और सेम प्रोजेक्ट को आप लोग अपने ड्यूरिंग फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है आप लोगों का, आप वहाँ पे सेम प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हो। प्लस आप अपने गिटहब रिपोजिटरी में जो आप प्रोजेक्ट बनाए हो, एक तो नहीं, आप कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आप अपने रिज्यूमे में वो प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू दोगे, आप अपने गिटहब का लिंक दे सकते हो। इतना क्रेडेंशियल दे रहा हो कि हमने ये किया है। एक बंदा जो कॉलेज से पास आउट होकर मई जून में निकलेगा 4 प्रोजेक्ट तक, वो क्या बताएगा कि मैंने क्या किया अपने इंट्रो में? आप अपने इंट्रो में क्या बताओगे कि आई डू दिस, आई मेक द I make the right pipeline, I make this, right? Okay, everybody can tell this, right? But now coming to the proof, what is your proof? GitHub repository, you go there, this code I have written, ये चीज मैंने लिखा है, right? आप यहाँ पे देखो, if you have any question, you can ask me under this code. उसके जो क्वेश्चन होंगे ना, किसी के भी क्वेश्चन होंगे, राइट, अपने आप क्लियर जाएंगे। एग्जाम्पल, बहुत से लोग ट्रेनिंग कराते हैं, पैसा लेते हैं, राइट? वो कहेंगे आप बॉन्ड भरो, आप एग्रीमेंट करो, ये करो, राइट? सब चीजें दिख जाती हैं, राइट? जब आप करोगे ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार वो गेटअप का लिंक देख ले, आपके कोड देख लेगा ना, और कोड लिखने का तरीका, कोड लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं कोड, राइट? लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप में से बहुत से लोग कोड लिखेंगे, बट उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होगा? हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हम मोस्टली लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट? हमारे घर में लोगों को क्या होता है, व्हाट आई फील, राइट, कि मेरा बेटा या जो भी होगा, कि भाई जैसे कॉलेज से पास आउट होगा, उसके अगले दिन नौकरी लग जाएगी। नहीं होता तो घर वालों को बड़ा मतलब फील होता है कि यार अभी नौकरी नहीं लगी, अभी भी हमें पैसा देना पड़ रहा है। हम क्यों नहीं कॉलेज के बाद हम 5-6 घंटे क्यों नहीं डाल सकते हैं? आप सोचो, मैं क्यों नहीं डाल सकता हूँ? अगर मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं अगर 8 घंटे 9 घंटे मेहनत करता हूँ, तो मैं 14 घंटे मेहनत क्यों नहीं कर सकता? 15 घंटे मेहनत क्यों नहीं कर सकता हूँ? अभी किसी ने किया था कि सर मैं क्या सीख क्यों, मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है सर, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैंने मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। You guys will feel the difference। जो दिलीप बोल रहा है ना, आपको 1 महीने में खुद अंतर समझ में आएगा विद इन योर सेल्फ और आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं। नाउ कमिंग बैक टू, मैं आपको बता रहा था कि आप पहले पोर्टल से फेमिलियर हो जाओ। हाउ डू यू यूज बेस्ट योर पोर्टल, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। थिंग इज, जब भी आप किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो, तो आपको वो कोर्स आपके डैशबोर्ड पे दिखता है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे आपके सारे वीडियो भी इसी में अपलोड होंगे। एक और चीज़ है कि आपके जितने लाइव क्लासेस हैं वो आपको टॉप पे दिखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यू विल सी ऑल दिस लाइव क्लासेस। अब ये लाइव क्लासेस इस फ्राइडे तक के ही हैं, क्योंकि इफ़ आई पुट ऑल द क्लासेस हियर, दिस होल स्क्रीन विल बी टू मच क्लटर्ड, राइट? तो एक हफ्ते पहले आपके सारे क्लासेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। एंड बिकॉज वी आर रनिंग ओनली 5 days अ वीक, राइट, मंडे टू फ्राइडे, तो एक हफ्ते के ये जो 5 क्लास हैं ये आपको दिखेंगे। अगले हफ्ते के 5 क्लास यहाँ पे थर्सडे तक अपलोड हो जाएंगे। सो यू विल हैव द लिंक टू जॉइन ऑल द क्लासेस, और उनका जो रिकॉर्डिंग होगा वो आपको आपके कोर्स के अंदर होगा। ये जो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग विंटर 2025 कोहर्ट है, इसके में आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। तो today's thing would be uploaded under the welcome and introduction. Here we will do the onboarding class 001 recording and you will find it here. This is the first thing you should be able to access on your portal. Second thing, आपको पोर्टल पे बहुत जरूरी है, you join the community. ग्रुप में स्टडी करेंगे तो a lot of time you have to share things between each other, right? तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, उसमें कई बार दिक्कत होता है। बट अ बेटर वे फॉर यू टू कम्युनिकेट बिटवीन योर फ्रेंड्स इज हियर। आप यहाँ पे जाओ, जैसे अभी मैंने ये एक लिंक डाला है, learning@
learning.siskriti.in। आपके जो होमवर्क होंगे, जो असाइनमेंट्स होंगे और जो बाकी का आपका अटेंडेंस ट्रैकिंग है, all of that will be done on this portal. So today we will register on this portal. तो आप लोग इस लिंक को क्लिक कर लो and you can go on this portal. When you go here you can create an account here. अब कंफ्यूज मत होना, आपके दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट आपका siskriti.in पे है, जहाँ पे आपको अपने कोर्सेज के रिकॉर्डिंग्स दिख रहे हैं, लाइव क्लासेस के लिंक्स दिखेंगे। यहाँ पे जो आप अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंट आपका बनेगा ट्रैकिंग, अटेंडेंस, होमवर्क, असाइनमेंट, गिटहब रिपोजिटरी जो हम सबमिट करेंगे आफ्टर एवरी लेक्चर, और वो सारी चीज़ें दे ऑल विल बी ट्रैक्ड हियर। तो यू कैन क्लिक दिस लिंक एंड स्टार्ट, आप ये कर सकते हैं रजिस्टर, बिकॉज हियर यू विल हैव टू गो एंड क्रिएट योर प्रोफाइल। जैसे मैं वेरी क्विकली दिखाता हूँ। सपोज करो आई वांट टू क्रिएट माय ओन प्रोफाइल, so I'll use one of my password. You guys have to use at least one uppercase, one lowercase, and one number, one special character. Because हर डेटा, सभी का डेटा सिक्योरिटी इज important, so make sure you have a good password. And role you keep learner, don't try to add admin, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको OTP वगैरह चाहिए होगा। तो रजिस्टर योर सेल्फ एज अ लर्नर ऑन द पोर्टल एंड व्हेन यू कम हियर आपको पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा। हियर व्हेन यू गो टू योर प्रोफाइल यू अपडेट ऑल योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे यू अपडेट योर नेम, फोन नंबर, आपका कॉलेज, ब्रांच, ग्रेजुएशन ईयर, फिल ऑल दिस थिंग। विल ऑल्सो नो कि कितना गैप है एंड हाउ मच वी हैव टू वर्क इंडिविजुअली। तो जस्ट डू अ प्रिलिमिनरी रेटिंग ऑफ योर स्किल सेट in the area of SQL, programming, statistics, mathematical concepts, machine learning, and deep learning, right? And generative AI concepts, how much you know. If you know basic, choose one. If you have a good working knowledge, choose three. And if you have build project, or if you are end to end, you are able to build something end to end, आप बहुत अच्छे से उसमें कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना लेते हो फ्रॉम स्क्रैच, select 4 or 5. Okay. Similarly, you can, this is mandatory, आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे विदाउट शेयरिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज अगर आप जॉब के लिए मार्केट में पिच कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इज प्रीटी सिक्योर्ड। दिस इज ऑल बिहाइंड दिस इज बिहाइंड आवर फायरवॉल, दिस इज वेरी सिक्योर्ड। आपका डोंट वरी अबाउट द डेटा सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। लिंक्डइन प्रोफाइल के बाद यू विल हैव टू अपडेट योर गिटहब प्रोफाइल, because every notes that you submit, all the homework assignments, they will all go on the same GitHub repository. तो share this portfolio will work with you, आपका resume वगैरह when you are, we feel you are ready for the job, इन सब पे आपका टीम में कोई ना कोई आपके साथ काम करेगा। And then once you fill this entire form, you can save your profile. After you save this profile, अभी क्या होगा कि everything would be pretty blank because I am not assigned to a cohort. Once you update your profile, we will assign a cohort to you, and then after that you can be able, you'll be able to see the class schedule, किस दिन पे, किस तारीख पे कौन सा क्लास है। when you attend the class, you request for the attendance, and then you will get the credit for the classes, so everything would be tracked from here. whenever there is a task created, आपको सारे टास्क दिखेंगे जो आपको सबमिट करने हैं। you submit your task, right? So we'll walk through this, आप टेंशन मत लो। अभी you just go and register here. The benefit of this is we can directly work with you, because this is a learner view, तो मैं आपको अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। most of the time you will get lot of polls, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो admin will create a poll, आपके जो भी आंसर्स होंगे you can submit here, and that's how we'll communicate other than the meeting where we are currently, जो टीम्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा we'll manage our communication on the portal. अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मुझे 1 to 1 देना है, जैसे तो आई विल सेंड अ पर्सनल नोटिफिकेशंस, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके अपने सेक्शन में, नोटिफिकेशंस में।
तो यू कैन ट्राई द पोर्टल ऑन योर ओन पेस। आज दिन भर में आप इसको, या कल दिन भर में आप इस पर रजिस्टर जरूर कर लेना, बिकॉज वंस यू क्रिएट योर प्रोफाइल, then only we can assign you a cohort, and then you'll be able to see everything that's happening in the cohort. So these are the three resources that you should have full visibility. पहला, आप Syskriti.in पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको आपके कोर्सेज और मीटिंग्स के लाइव लिंक दिखते हैं। कम्युनिटी में यू कैन पोस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स, कोई भी अच्छा इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, you share here, and learning.syskriti.in पे you go and track your progress. एक चीज और ऐड कर देते हैं। अच्छा, अभी किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अगर किसी को भी सी, आप डॉक्टर के पास आए हो, अगर आप सही इलाज नहीं बताओगे ना, अपना नंबर नहीं हो पाएगा। किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश आपको फास्ट है, कुछ भी है, आप बिल्कुल बिल्कुल आप ओपनली बोल सकते हैं, राइट? वी आर फ्रेंड्स हियर, राइट? So, guys, like today is a onboarding session, so मैं आपको सारे resources दिखा रहा हूँ, कहाँ पे register करना है, कैसे करना है, and then we will go in the actual curriculum and the syllabus. If we have some time left today, we'll start it from today itself. But before that, I'll give you an idea. जैसे दिलीप ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? Your objective should be to earn at least 3 years of experience in 6 months. ये जो अभी से जून जुलाई तक का समय है, इस समय में आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपके रेज्यूमे पे 3 साल का एक्सपीरियंस इक्वलेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेट वगैरह चेंज करो, बट आपका रेज्यूमे शुड रिफ्लेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो व्हेन यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि हाँ, बंदे को सब कुछ आता है, इज नॉट अ फ्रेशर। वो फ्रेशर रेज्यूमे पे दिखता है, बट ही इज वेरी स्ट्रांग, एंड दैट्स हाउ वी कॉन्फिडेंटली मार्केट यू विद इन आवर इंटरनल नेटवर्क। जो हमारे इंटरनल रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं, जिन की हमारी पार्टनरशिप होती है, वी गिव देम data engineers, business analysts, data scientists, sometimes AI architect, AI project managers. So we fulfill all these requirements with different consulting firms. So we'll be able to confidently send your resume there. तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे जॉब मिलेगा। और दूसरा चीज़ है, देखो इंडिया में अगर आप लोग अवेयर हो, and because we are not in a marketing webinar, तो I'll finish it very quickly. अभी कितने लोगों को पता है कि इंडिया में एआई समिट हो रहा है? ग्लोबल एआई समिट राइट नाउ इज हैपनिंग इन दिल्ली, जो आपका वो मंडपम है वहाँ पे हो रहा है। सो ऑल द बिग पीपल लाइक सत्या नडेला, सुंदर पिचई, सैम एल्टमन, बिल गेट्स, दे आर ऑल राइट नाउ इन दिल्ली। तो वो सब इंडिया में ही है। देखो इंडिया में जॉब, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो बड़ी कंपनीज थी जो पहले देती थी, इनका जॉब कट हो रहा है, राइट? दे आर कटिंग द जॉब्स, जॉब जा रही है, टीसीएस भी लोगों को निकाल रहा है, इन्फोसिस भी निकाल रहा है। फ्रेशर्स के लिए नौकरी मिलना मुश्किल होगा, बट एट द सेम टाइम जो यूएस की कंपनीज हैं, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, मेटा, ये लोग इंडिया में जॉब देंगी। दे विल प्रोवाइड मोर जॉब्स इन इंडिया बिकॉज दे नीड गुड टैलेंट। अब जीसीसी में जॉब पाने के लिए और एक देसी कंपनी में जॉब पाने में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस इज द माइंडसेट थिंकिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अभी तो आपका उतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, बट इवन पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर 2 or 3 years, दे वर्क इन अ साइलो। तो अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसको केवल फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है। इफ समबडी इज अ बैक एंड डेवलपर तो उसको केवल बैक एंड आती है। कोई डिजाइनर है तो उसको केवल डिजाइन, उसको केवल फिग्मा और ये सारी चीजें आएंगी। ओके, सो पीपल वर्क इन देयर वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया एंड दे डोंट ट्राई टू बिकम द फुल स्टैक। और कभी आप किसी जीसीसी का जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ना, जैसे अमेजॉन या फेसबुक का, आप कोई भी ओपनिंग लिंक्डइन पे सर्च कर लीजिए और उसको आप जाके पढ़ो। उसमें आपको दिखेगा कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ पर्सन, दे आर आस्किंग फॉर अ होल आईटी डिपार्टमेंट। क्योंकि उसमें वो आपसे सब कुछ मांगेंगे। आपको CI/CD आनी चाहिए, आपको डेवऑप्स आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए,
आपको पाइथन आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए. So the idea is when you are working in a GCC, you have to be full stack. और full stack अपने फील्ड में डेटा साइंस और एनालिटिक्स में फुल स्टैक होने के लिए यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं. नाउ कुछ लोग ये भी हम लोगों को बोलते हैं कि मैं 3 महीने में जॉब नहीं पा सकता हूँ, 4 महीने में नहीं पा सकता हूँ. आप पा सकते हो, बट आप ये सोचो कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है 6 महीने में, इन 1/5 ऑफ द टाइम. आपको लगता है आप उससे भी कम समय में उतना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, तो वेरी गुड. आप मोटा मोटी ये सारे चीज़ें आप देख लो. यू हैव टू बी प्रेटी गुड इन ऑल दीज 7 एरियाज. आज की तारीख में जॉब लेने के लिए, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको जॉब मिल चुकी है वो लकी थे. आप भी लकी हो, लेकिन आप लकी दूसरे एस्पेक्ट में हो. आप लकी इसलिए हो कि आज की डेट में आप एआई का यूज कर सकते हो, बट समय के हिसाब से डिमांड चेंज हो गया तो आपको चेंज होना पड़ेगा. यू हैव टू बी फुल स्टैक. नाउ डू यू हैव टू बी 9 आउट ऑफ 10 इन ऑल दिस 7 एरियाज? लो, ठीक है. तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होना है सारी चीजों में, बट यू नीड टू नो एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 10 इन ऑल दीज एरियाज. सो वेदर इज SQL, writing basic query statements against any kind of database, चाहे आप Postgres के अगेंस्ट लिखो या MySQL सर्वर के अगेंस्ट लिखो, and you can practice all this. We will practice all this together, right? तो your query writing skills should be significantly high. एक चैलेंज मैं आपको बता सकता हूँ. इन इंटरव्यू, whenever we ask a candidate how do you rate yourself in SQL, ज़्यादातर बच्चे जवाब देते हैं 6 आउट ऑफ 10 के ऊपर ही. दे विल रेट देम 6 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10 और 9 आउट ऑफ 10. बट वेन दे आर आस्क्ड टू राइट द क्यूरी, उनसे क्यूरी बनती नहीं है 2 मिनट में. तो विल मेक श्योर, आप भी ये इंश्योर करो कि यू कैन राइट क्यूरी इन 2 मिनट्स ऑन पेपर विदाउट यूजिंग एनी IDE. क्योंकि जब आप इंटरव्यू में क्यूरी लिखते हो तो यू हैव टू राइट इट ऑन पेपर ओरली, और वो क्यूरी आप जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा चांसेस है आपके नेक्स्ट स्टेप में आगे जाने के. सेम थिंग गोज विद पाइथन. जब भी आपसे इंटरव्यू में पाइथन का कोड लिखवाया जाएगा, आपका स्क्रीन शेयर करवा के, अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यू ले रहा है रिमोट, तो आप उसको बोलेगा स्क्रीन शेयर करके आप कोड लिखो, और आईडी में आपको बोलेगा कि आप .py फाइल मत बनाओ. बिकॉज वेन यू यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईडी को बता देते हो, तो आजकल जो एआई है ये आपको ऑटो फिल की फैसिलिटी देता है. स्टार्ट राइटिंग कोड इन VS कोड, अगर आप लोग VS कोड में कोड लिखते हैं तो यू विल सी कि यू गेट एवरीथिंग ऑटो फिल्ड. आप लेट लिखोगे उसके बाद वो खुद ही, मतलब अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख रहे हो तो यू राइट समथिंग एंड इट विल ट्राई टू फिल एवरीथिंग. आप पाइथन में फॉर लिखोगे, वो आगे की चीज़ें आपको सजेस्ट कर देगा, ब्रैकेट आई, राइट. सो द आइडिया इज इंटरव्यू में आपको .txt फाइल पे लिखवाएंगे सो दैट यू डोंट गेट दिस AI हेल्प. तो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज विदाउट यूजिंग एन AI टूल. तो वेन एवर यू डू द असाइनमेंट, कभी भी आप टेम्प्ट मत हो कि ChatGPT से आंसर कॉपी करके पोर्टल पे सबमिट कर दिया. बिकॉज इफ यू आर डूइंग दैट यू विल रन इनटू लॉट ऑफ चैलेंज इन फाइंडिंग द एक्चुअल जॉब. Same thing goes with stats. You need to have the foundational knowledge in machine learning. You need to know all the famous techniques, all the models like regression, clustering, आपका K-means, KNN, support vector machines, SVM, right? Random forest, XGBoost. These are all famous algorithm. You should have a conceptual idea of all these algorithms. और आप चाहे जितना AI का यूज कर लो, इफ द इंटरव्यूअर इज इंटेलिजेंट, विच इन द मोस्ट केस इंटरव्यूअर विल बी इंटेलिजेंट, वो समझ जाएगा कि आप कितना मेकअप कर रहे हो और आप कितना फेक कर रहे हो. ठीक है. We need to know some of the mathematical basics behind the algorithm. We don't have to know it in 100% totality, but we will have to know. जैसे loss functions, cost functions, they become very important in AI models. Same thing goes with deep learning. We'll learn ANN, CNN, right? With agentic AI, we'll build the RAG pipeline, and you will do all of this as we go, right? तो ये सब हम लोग करेंगे full hands on. तो this is the entire stack. आप ये आइडिया लगा लो
कि in next 6 month you have to master these 7 things। तो मोटा मोटी पकड़ के आप चलो तो आपके पास 1 महीना पर स्किल पड़ता है, which is not a lot of time, which again means you have to put lot of hard work। अब देखो ये है complete schedule, okay? Now this is by exact date। We are today here on 16th Feb। Today we have to finish SQL 100, but let's do the onboarding precisely। एंड ऑनबोर्डिंग अच्छे से होगा, आपको सब पता है कि रिसोर्सेज कहाँ है, रजिस्टर कहाँ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस करनी है। तो आई विल गिव यू अ वेरी हैक कि आपका SQL 100 का जो लेक्चर है वो कैसे पूरा हो जाएगा। एंड देन एनीथिंग दैट वी मिस टुडे वी कैन यूज द वेडनेसडे क्लास फॉर मेकअप। किसी भी हफ्ते में अगर कुछ दिक्कत होती है, एनी ऑफ आवर प्रोग्राम गेट्स रीशेड्यूल्ड, कोई क्लासेस अगर रीशेड्यूल होती हैं तो दे विल बी मूव टू वेडनेसडे। 5 days a week, 2 घंटे वी विल लर्न द बेसिक्स। और देखो वी आर नॉट लर्निंग वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, बिकॉज इफ यू लर्न, अगर हम सिक्वल ही 9 दिन पढ़ेंगे ना तो इट विल बिकम क्वाइट बोरिंग और आपके लर्निंग कर्व स्लो हो जाएगा। सो 1 day we will learn SQL, second day we'll learn Python, then we'll have the doubt class where we will do some hands on, जो आपका असाइनमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम आया है we'll debug it together, then again statistics Python। तो इस तरीके से आप देख लो, we'll learn Excel, we'll learn the business analytics skills, stats के भी classes हैं, then we will learn after the stats Python Excel is done। यहाँ पे आपकी basic problem solving capability बन जानी चाहिए। And I'll walk you through कि how we have designed it। It's designed on our experience and our industry research that will make you job ready। तो एक ऐसा नहीं कि रैंडम है, सिक्वल पाइथन स्टैट्स पहले है, बाद में मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, बाद में डीप लर्निंग है और बाद में एआई है। इट्स नॉट रैंडम, इट्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। उसको एक आइडिया मैं आपको यहाँ से देता हूँ, वो कैसे ऑन टॉप ऑफ वन अनदर है। देखो जितने भी यहाँ पे बीटेक एमसीए जिनका भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, आप सब लोगों के लिए एक एडवांटेज है। ऑल ऑफ यू गाइस हु हैव कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, यू डू हैव एन एडवांटेज बिकॉज आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है, आपको एल्गोरिदम पता है, आपको एल्गोरिदम समझ में आती है, यू नो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पाइथन में ऑलरेडी बहुत सारा कोड लिखा होगा, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाए होंगे, तो यू ऑलरेडी हैव अ गुड फाउंडेशन। और आप ऐसे सोचो, जॉब जो है वो एक छन्नी की तरह है, जैसे आप चाय को छानते हो ना, वैसे ही इंटरव्यू प्रोसेस का पूरा पर्पज यही होता है कि वो बच्चों को छाना जाए, सबसे जो अच्छे हैं उनको रखा जाए, क्योंकि वही सबसे अच्छा काम करेंगे तो कंपनी का भी फायदा होगा, फिर उनका भी फायदा होगा। हाउ इट गोज इज के यहाँ पे नीचे जाते जाते अगर ऊपर 100 एप्लीकेंट हैं, अगर लिंक्डइन पे किसी पोस्ट पे आप देख रहे हो कि 500 लोगों ने अप्लाई किया है, तो लास्ट में 1 या 2 लोगों को जॉब मिलती है। तो जो फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, फिल्टरिंग प्रोसेस में भी अगर आप नोटिस करो, आपका पहले HR राउंड होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन HR राउंड पीपल फिल्टर योर हैबिट्स, आपके हैबिट और एटीट्यूड पता चल जाते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट आइडिया इज टू नो आपका फाउंडेशन कितना अच्छा है, आपके एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, हाउ आर दोज थिंग्स। अगर वो सब कुछ अच्छा है तब टेक्निकल की बारी आती है। फिर आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कोई एल्गोरिदम बनाओ या कोई प्रोग्राम लिख के दिखाओ, राइट? या होम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि टेक होम टेस्ट है, आप वो सबमिट करो, या आप गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दो, वहाँ से फिर यू गेट यू आर आस्क्ड मोर इन डेप्थ क्वेश्चन। हाउएवर जो पूरा का पूरा फोकस होता है ना टेक्निकल इंटरव्यू में, दैट इज नॉट टू चेक हाउ गुड यू कैन राइट प्रोग्राम। वो होता है, दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट द बेसिक थिंग दैट इज गेटिंग सर्च देयर बाय इंटरव्यूअर इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या आप बिजनेस के प्रॉब्लम को समझ के उनका कोई सोल्यूशन अपनी तरफ से दे रहे हो? सो दैट्स व्हाई इंटरव्यू देखो आपसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज वी आर रनिंग अ वेबसाइट,
एंड वी हैव लो ट्रैफिक, डेटा एनालिसिस से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे साइट की ट्रैफिक बढ़ जाए, या वी हैव लो कार्ड चेकआउट रेट, हमारा वेबसाइट का कन्वर्जन कम है। एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप ऐसा क्या कर सकते हो हमारे लिए कि हमारा कार्ड कन्वर्जन बढ़ जाए? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में। बिकॉज द आइडिया इज कि आप जो भी एल्गोरिदम्स फार्मूला जानते हो वो तो ठीक है, बट देन हाउ डू यू ट्रांसलेट कि मेरा ट्रैफिक का कन्वर्जन कम है, या ट्रैफिक का वॉल्यूम कम है, या ट्रैफिक अगले पेज पे नहीं जा रही है। दिस इज इन केस ऑफ ई कॉमर्स। दूसरे केस में, गूगल के केस में दूसरा हो सकता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दोगे तो आपसे वो किसी सिस्टम का डिज़ाइन करवाएंगे। तो डिपेंड करता है, बट एवरीवेयर द सेंट्रल आइडिया इज सेम थिंग। आप प्रॉब्लम को एल्गोरिदम में कैसे मैप कर रहे हो। ओके, so those are the things that are filtered out in the second stage. As the idea ये है कि in the age of AI, ये जो filtering process है, this is becoming more robust. आपका पहले इस फिल्टरिंग में से पास करना आसान था। आप ये समझ लो पहले छन्नी थोड़ी मोटे थी, अभी क्या है वो छन्नी पतली होती चली आ रही है। तो somehow as a fresher you have to show your 3 years of experience and get through that process. Okay, तो उसके लिए दिस कोर्स विल मेक यू इनेबल्ड। इसमें देखो, वी विल डू 4 weeks ऑफ हैकाथॉन वेर वी बिल्ड आर फंडामेंटल इन सिक्वल स्टैट पाइथन में। जब हमारा हो जाएगा तो वी विल कम अप विद आइडियाज। आप सब लोगों को एक प्रोजेक्ट, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट है। एवरी डे वी विल कम टुगेदर एंड हम बात करेंगे प्रोजेक्ट में कौन सी टीम क्या कर रही है, एंड यू गाइज विल बी डिवाइडेड इनटू टीम्स। आप लोगों की 2-2 3-3 लोगों की टीम बनेगी एंड यू विल वर्क इन टीम। तो यू विल कम अप विद योर ओन आइडिया, उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आप कोड लिखेंगे, ठीक है, एंड वी विल सी द रियल एंड प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ वीक 1। विच एवर टीम्स विन विल गेट अ पॉइंट। तो पोर्टल पे आप जब जाएंगे ना तो यू विल सी अ लीडर बोर्ड, यू कैन सी कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन सी टीम कितना अच्छा कर रही है, ऑल ऑफ दैट विल बी ट्रैक्ड। तो सिमिलरली व्हेन वी नो मोर अबाउट मशीन लर्निंग, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वी विल डू अनदर राउंड ऑफ हैकाथॉन। उस हैकाथॉन में यू विल बिल्ड प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन द बैक एंड। फिर फाइनली जब हम लोग सब कुछ जान जाएंगे, व्हेन वी विल नो ऑल द डीप लर्निंग एंड एआई मॉडल्स, देन वी विल डू द फाइनल प्रोजेक्ट, द बिगेस्ट हैकाथॉन। यहाँ पे आप कोई बहुत इनोवेटिव आइडिया लेके आते हो जो हमें लगता है कि वी शुड आल्सो ट्राई एंड इन्वेस्ट, तो वी विल इवन पार्टनर विद यू। अगर आप, ऐसा बहुत कम होता है, बट एज अ फ्रेशर इफ यू कैन कम अप विद अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया, देन वी कैन पार्टनर ऑन योर, विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया। और फिर इसके बाद क्या होगा कि लास्ट के कुछ वीक्स में, एवरी वीक वी विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड वी विल वर्क ऑन द प्लेसमेंट ड्राइव। यहाँ तक अगर आप लोग छन्ने में से बचते चले गए तो जो हमारे साथ एंड तक बचेंगे, वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, द नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। द इम्पॉर्टेंस इज कि जो भी बचे वो लोग अच्छे हों, एंड देन वी विल वर्क ऑन योर जॉब प्लेसमेंट। एंड यकीन मानो अगर इतना पूरा आप मेहनत करोगे तो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, बट योर प्लेसमेंट इज 99% गारंटेड। सो एवरी डे थोड़ा सा आपको अपने एंड पे एफर्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा टाइम ऑन योर एंड। अब आप में से जो स्टूडेंट हैं वो देख लो कि आप 5 से 6 घंटे कैसे देते हो। 2 घंटे एवरी मॉर्निंग हम लोग बातचीत करेंगे। यू कैन यूज दिस टाइम टू आस्क ऑल द क्वेश्चन। और व्हेन वी गो इन द एक्चुअल क्लासेस, तो हमारी क्लासेस बहुत तेज होंगी। वी विल लर्न लिटिल बिट क्विकली, क्योंकि हमें 6 महीने में 3 साल की चीज़ें पढ़नी है। आपने जितना भी बीटेक में पढ़ा है उसका लगभग लगभग निचोड़ हम 6 महीने में ही रिवाइज करेंगे या उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो एवरी क्लास विल बी वेरी डेंस। सिक्वल 100, वो कॉलेज वाला सिक्वल 100 नहीं है। इन 1 डे वी विल बी राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी। तो प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगा, बट यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको समझ में ना आए। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग एंड डूइंग थिंग्स। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो देख सकते हो, बट उससे क्या होता है कि आपको वीडियो देखते समय सब समझ में आता है,
बट जब आप एक्चुअल VS कोड में जब आप कोड लिखते हो तब प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तब एरर्स आती हैं, चीज़ें रन नहीं होती हैं, और फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है कि अब इसके आगे कैसे करें या चीज़ों को आपस में जोड़ें कैसे, फुल स्टैक कैसे बनाएं। तो यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टाइम है। ये 2 घंटे तो आप हमारे साथ दे रहे हो, बट 4 घंटे आपको जो भी टास्क मिल रहे हैं, फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर टास्क। गिटहब में आप अपना फाइनल PY फाइल डालिए, सब कुछ, एंड वी विल बी एबल टू ट्रैक योर टाइम स्टैम्प एंड एवरीथिंग। ओके, सो द होल आइडिया इज, बिकॉज आप रिमोटली कर रहे हो, घर से कर रहे हो, यू कैन डू इट एट योर ओन पेस। आपको, आप में से कुछ लोग नाइट पर्सन होंगे, यू डू योर असाइनमेंट इन नाइट, दैट इज फाइन। कुछ लोगों को दिन में असाइनमेंट करना आसान होगा, यू डू योर थिंग्स इन द डे, कंप्लीटली फाइन। फर्क नहीं पड़ता आप कब कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो मन लगा के 4 से 5 घंटे आप टास्क को करो। अगर आपको 6 महीने में जॉब चाहिए तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। दिस इज द यू हैव द रिसोर्सेज। तो संस्कृति का जो पोर्टल है, डैशबोर्ड, एक जगह पे आपके कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, और learning.siskriti.in पे आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, learning.in पे अगर कोई भी फॉर्म आप सबमिट करते हो और इंटरनल एरर आता है तो डोंट वरी, जस्ट सबमिट इट वन मोर टाइम, वो सबमिट हो जाएगा। देयर इज नो एरर ऑन द वेबसाइट। ओके, फ्यू थिंग्स वेरी क्विकली, क्या करना है क्या नहीं करना, और ये पूरे कोर्स के दौरान लागू होगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि लेट्स हैव लिटिल बिट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि आप जॉब के लिए हो। तो गोइंग फॉरवर्ड जितने भी लोग हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, ट्राई टू बी ऑन कैमरा। ओके, आप प्रोफेशनली, इवन दो इट इज़ इवनिंग फॉर यू, आप अच्छे से ड्रेसअप हो, एंड अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद बी ऑन कैमरा, इंगेज, आप क्वेश्चंस पूछो, हैंड रेस करो, आस्क योर डाउट, बिकॉज एक आदमी क्वेश्चन पूछता है तो बाकी लड़के भी क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई एक शुरुआत करेगा तो बाकी लोगों के भी डाउट, तो आप दूसरों को मौका दो। आपके क्वेश्चन पूछने से दूसरे लोगों को हिम्मत आती है, वो अपना क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो इट्स अ वायरल इफेक्ट। सो इंगेज, क्योंकि दिलीप ने बोला ये सब आपके लिए है। We are not gaining anything out of this. Our objective is to make you gain maximum out of it. I highly advocate you to use AI, but in the right way. आप में से जितने लोग चैट जीपीटी नहीं यूज करते हो, यूज करना चालू कर दो। अगर आप चैट जीपीटी के अलावा भी यूज करते हो, आप में से अगर कुछ लोग क्लाउडी यूज करते हैं या एंथ्रोपिक का कोई मॉडल यूज करते हैं, सोनेट वगैरह, तो दैट इज बेटर। ओके, सो जेमिनाई, ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, या फिर अगर आप डीप सीक वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो, स्टार्ट यूजिंग एआई, बट यूज एआई टू एक्सिलरेट योर नॉलेज। आप एआई से अपना काम को रिप्लेस मत कराओ, ठीक है? डोंट यूज एआई टू डू योर टास्क, असाइनमेंट, होमवर्क, वो सब एआई से मत कराओ। एआई से आप डिबग करा लो अपने कोड को। आपने कोई कोड लिखा, उसमें एरर आ रही है, वेडनेसडे का डाउट सेशन अभी 2 दिन बाद होना है, तो यू कैन आस्क योर एरर विथ चैट जीपीटी, और वो आपको एरर रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यूज एआई एज ए कंपेनियन टू लर्न, नॉट टू रिप्लेस, क्योंकि अगर आप एआई को एज ए रिप्लेसमेंट टूल यूज करोगे तो अल्टीमेटली एआई ही आपको रिप्लेस करेगा, यू विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इट। ओके, learning.siskriti.in, यहाँ पे सारी ट्रैकिंग आपकी हो रही है, तो अटेंडेंस, टास्क, सबमिशंस, लीडर बोर्ड, और इवन प्लेसमेंट अपडेट्स, एवरीथिंग विल हैपन फ्रॉम दिस पोर्टल। तो आप इसको बुकमार्क कर लो एंड यूज दिस पोर्टल, एंड ट्रस्ट मी, बैकएंड से हमें सब पता चल जाता है कौन कितने मिनट पोर्टल पे ऑनलाइन है, किसने कितने मिनट पोर्टल को इस्तेमाल किया है, तो वी गेट टू नो ऑल द स्टैट्स। तो उसी के बेसिस पे 3 महीने बाद तय तय होगा कि हम आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दें कि नहीं दें। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा। एवरी वन हु इज डूइंग द ट्रेनिंग, मेकिंग द अटेंडेंस, तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अर्न करना पड़ेगा। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इज नॉट गारंटीड इवन दो इट इज फ्री। वो गारंटी नहीं है फ्री होने के बावजूद। वो आपको तभी मिलेगा जब आपके सारे टास्क, सारे असाइनमेंट पोर्टल पे टाइमली सबमिट होते हैं। टेक अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा देखिए, ये फ़र्क होता है एक जॉब करने और न करने वाले में। अगर जो जॉब नहीं कर रहा है, अगर वो उसका कोई काम नहीं होगा तो वो 50 बहाने बना देगा। मेरे घर में लाइट नहीं थी, ये हो गया था, कुछ हो गया था, समथिंग हैपन, राइट? बट वेन यू आर इन जॉब, यू कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूज।
आपके घर में लाइट नहीं थी, आपके शहर में इंटरनेट नहीं था, लॉकडाउन लगा था, डज नॉट मैटर, आपका काम पूरा होना चाहिए इनके इन प्रकार। तो वो हैबिट आप अभी से डेवलप करिए। कुछ ये सारी चीज़ें करनी है, जो चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज यू आर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं संस्कृति के कम्युनिटी पे, यू कैन पोस्ट, यू कैन शेयर। तो बी रिस्पेक्टफुल इन जो आप शेयर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर कोई और कुछ शेयर कर रहा है तो उस पर कोई ऐसा कमेंट ना करें कि एनीवेज विल बी मॉडरेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, विल नॉट अप्रूव इफ समथिंग इज इनअप्रोप्रिएट। बट आपको भी इफ़ वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या नहीं शेयर कर रहे हो, हाउ यू आर वर्किंग विद योर टीममेट्स, योर कलीग, बिहेव लाइक कंपनी की, जैसे कंपनी में हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बिल्ड द सेम कल्चर। आप ये करो कि यू आर वर्किंग इन अ कंपनी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ओके, वो पूरा एक्सपीरियंस आप एज इज लो। सेम थिंग, कोई स्पैमिंग नहीं, एंड आप ग्रुप चैनल का मिसयूज ना करें। और बिगेस्ट थिंग, बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन फ्री, प्लीज डू नॉट लीक द कंटेंट्स एंड मटेरियल्स। अपने दोस्तों के साथ वीडियो वगैरह तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बट समटाइम्स वी हैव सीन कि कुछ बच्चे करते हैं, दे यूज ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह यूज करके दे ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल। डोंट ट्राई टू डू दैट, क्योंकि इफ़ वी फाइंड एनी एविडेंस विल डिसेबल योर आईडी। और अगर हम आपकी आईडी डिसेबल नहीं भी करते हैं तो दिस इज़ द बेसिक एथिक्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ रिस्पॉन्सिबल। आप लोग 20-22 साल के बच्चे हो, so you guys, most of you would be more than 20-21, right? So we assume that level of sincerity. Today is onboarding, so but you got the idea. The idea is to build all this capability. आपको एक mindset देना है। देखो, एक जॉब करने और ना करने वाले में केवल माइंडसेट का फर्क होता है। जो आप कोड लिखते हो, जो आप स्कूल में असाइनमेंट करते हो, तो आप एक सिंगल पाइथन की फाइल बनाते हो, या आप एक सिंगल सिक्वल की स्क्रिप्ट बनाते हो। जो आप कंपनी में उसी कोड को लिखते हो तो यू मेक इट मोर मॉड्यूलर। आप उसको फंक्शंस के जरिए बनाते हो, आप उसका वर्जन कंट्रोल करते हो, बिकॉज यू हैव टू शेयर विद द टीम, राइट? तो काम को करने का तरीका अलग हो जाता है। सो वील हैव टू बिल्ड ऑल दोज स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट इन 6 मंथ। तो जो 3 साल में आप जॉब पे सीखते हैं, विल हैव टू डू ऑल ऑफ दैट इन 3 to 4 months। ठीक है, क्वालिटी विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इसीलिए जो वेडनेसडे की क्लासेस हैं उसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम द बेस्ट आउट, जिसका भी असाइनमेंट बेस्ट होगा, ही विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द कॉल। जो अपना शेड्यूल है ना यहाँ पे, एवरी वेडनेसडे यू सी दिस डाउट क्वेश्चन एंड आंसर। तो डाउट क्वेश्चन एंड आंसर तो पूरा 2 घंटा नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सारे एरर डिबग वी डू इट इन 1 आवर। एंड देन इन नेक्स्ट 1 आवर जो भी अच्छे असाइनमेंट्स उस वीक के होंगे, दे विल बी प्रेजेंटिंग देयर वर्क, दे विल बी टॉकिंग देयर अप्रोच, कि अगर आपने कोई कोड लिखा है तो आपने उसी तरीके से क्यों लिखा है, वाई डिडंट यू टेक अनदर अप्रोच, राइट? सो आइडिया ये है कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसको एक्सपीरियंस मिले कम्युनिकेशन का। सो यू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क। और इसमें सारा कुछ होगा कि यू विल क्रिएट डेक, यू विल, जैसे कंपनी में होता है, आप जो भी काम करते हैं उसका एक आप अच्छा सा डेक बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन अ टीम और इन अ बोर्ड मीटिंग। तो सिमिलरली यू हैव टू डू दैट ऑन वेडनेसडे। बनाना सबको है, बट प्रेजेंट करने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो उस वीक में लीडर बोर्ड पे हाई होंगे या फिर उनकी टीम हाई होगी। प्रेजेंटर्स को तो ये फायदा है कि यू गेट टू एक्सपीरियंस द कम्युनिकेशन। जो उस वीक में मान लो आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए फायदा क्या है? यू गेट टू नो अदर पीपल ओपिनियन। कि जब मान लो कोई भी प्रोग्राम है, जैसे एक सिंपल प्रोग्राम है कि आपको कोई लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है? तो सॉर्टिंग के आपने बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़े होंगे, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, वो सॉर्ट, राइट? बट जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो देर आर 100 ways ऑफ राइटिंग द सेम प्रोग्राम। तो आपने अपने गिटहब में उस प्रोग्राम को किसी तरीके से लिखा होगा, बट जब आप दूसरे का काम देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे होता है, दूसरा उसी काम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो आप एक चीज ये मान के चलो कि लर्निंग इंडिपेंडेंटली इज गुड, बट लर्निंग इज इन ग्रुप इज मोर पावरफुल। क्योंकि जब आप ग्रुप में लर्न करते हैं ना, तो आप सबके काम से लर्न करते हैं, आपको डिफरेंट ओपिनियंस भी मिल जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन भी मजबूत हो जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ गुड टीम मेंबर। आपके अंदर वो टीम स्पिरिट आ जाएगा, बिकॉज एनीवेज यू विल बी वर्किंग इन इन ग्रुप्स एंड टीम्स। बिल्ड द कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये काम हम हर हफ्ते कर रहे हैं फॉर अनदर कितने हफ्ते, लाइक 40 वीक्स, 40 नहीं, कितना, 26, लगभग 26 हफ्ते तो हम लोग रहेंगे ही साथ में। तो ऑल ऑफ दिस विल मेक यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर करियर। वो आपका ये सारा फनल वगैरह सब सेट हो जाएगा, बेसिक्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ अपने पोर्टल में जाऊँ, तो क्लास शेड्यूल, चूंकि मेरा कोहर्ट अभी नहीं है मुझे मिला, तो एक सेकेंड, लेट मी असाइन द कोहर्ट टू दिस मेंबर श्री। बाकी आप में से जो भी रजिस्टर कर रहे हैं, किसी को कोई एरर आ रही है पोर्टल पे रजिस्टर करने में? learning.scripty.in कर सकते हैं एक। दूसरा, ट्राई टू डोंट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग दिस सेशन एटलीस्ट 2 आवर। अवॉइड टू यूज मोबाइल फ़ोन अगर आप लोगों को जॉब पानी है, क्योंकि आप फोकस रहेंगे पूरा, चीज़ें मिस नहीं होगी, आप कनेक्टेड रहेंगे। और कोशिश करें आप बोलिए। अब क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये कोई हंसेगा, यहाँ हंसने वाला कोई नहीं है। एवरीवन इज हियर फॉर गेटिंग द जॉब। सबको जॉब का जरूरत है, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल रहा हो सकता है आइडिया में भी गलत हो, या गलत क्या हो सकता है, ओपिनियन अलग हो सकता है, थाट अलग हो सकता है, बट आइडिया आप जरूर रखो अपना, जो भी थाट है, ठीक है। आप बोलो। अब तक का जो क्लास हुआ तो आपको कैसा लगा? अब तक का जो सेशन हुआ 1 आवर, आपको कैसा लगा? कि लाइफ के लिए कैसा है? फीडबैक कोई दे सकता है अभी? वेरी गुड क्वेश्चन सत्यम। इफ यू सी माई स्क्रीन, जब आपने प्रोफाइल अपना, जब आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल भर रहे हैं, तो एट द बॉटम हियर यू सेलेक्ट योर टारगेट रोल, ओके। आप यहाँ पे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमएल इंजीनियर आप सेलेक्ट करिए कि विच आर द एरिया दैट यू आर ट्राइंग टू, विच एरिया यू आर ट्राइंग टू टारगेट। एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट, यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट कि लाइक I want to be full stack web developer, which is not in this list. So I can specify full stack web developer here. उससे हमें पता चल जाएगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। Now to answer your question, in the industry, देखो AI के आने के आप ये समझो कि हम एक बहुत ही अलग समय में हैं, ठीक है। In next 1 year, most of the software development job will go away. मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जॉब विल गो अवे। तो उसमें आज की डेट में जो भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दे विल हैव द हार्डेस्ट टाइम। उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय आएगा। तो अगर आप उसमें नहीं हो तो आप लकी हो, क्योंकि आपके लिए फिर भी अच्छा है। अब क्वेश्चन आते हैं एआई और एमएल फील्ड में। देखो मोटा मोटी ये 5 एरिया हैं बेस्ड ऑन जो रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं इन फील्ड ऑफ डेटा साइंस, एमएल, एआई। वी रिक्रूट दीज मैनी पोस्ट, इसीलिए आपको ये चॉइसेस दिए गए थे। ईदर पीपल ट्राई टू बिकम डेटा एनालिस्ट, जो कि मोर ऑन द सिक्वल डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन बिल्डिंग उस साइड में होते हैं, और पीपल ट्राई टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, जहाँ पे यू आर मोर इनटू एक्सेल, टैबलो, पावर बीआई, डैशबोर्डिंग, रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, वेब एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, राइट। तो ये सारा डोमेन बीआई एनालिस्ट का होता है। और यू बी ए कंप्लीट डेटा इंजीनियर। अब डेटा इंजीनियर में क्या होता है, यू नीड टू नो द सम ऑफ द पाइपलाइनिंग टूल लाइक काफका, स्पार्क, पाई स्पार्क, राइट। ये सारी स्किल सेट चाहिए होती हैं। देन कम्स द एमएल इंजीनियर। एमएल इंजीनियर के लिए पाइथन की जो एमएल लाइब्रेरीज हैं लाइक साइकिट लर्न, पाई टॉर्च, इन सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम गिविंग एन आइडिया कि हर स्ट्रीम के लिए क्या फोकस करना है आपको। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ मोर डेटा एनालिस्ट, तो जब आप कोर्सेज, जो आप क्लास शेड्यूल पे जो लोग भी रजिस्टर्ड होंगे उनको क्लास शेड्यूल यहाँ पे दिखेगा। एंड द शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट, बट ये कंप्लीट हो जाएगा। विल पुट एवरीथिंग हियर। तो जिनका भी प्रोफाइल कंप्लीट हुआ था, आई असाइन टू यू। तो अब जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे यहाँ पे समरी पे, तो यू कैन सी योर कोहर्ट एंड यू विल सी योर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग ट्रैकिंग हियर। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जब आप क्लास शेड्यूल देखेंगे,
तो यू आइडेंटिफाई योर ओन कोर स्ट्रेंथ। देखो आप सब लोग इंजीनियर्स हो, treat yourself like an engineer, don't treat yourself like a student. We don't treat you like a student, हम आपको ट्रेनिंग एज ए इंटर्न ट्रीट कर रहे हैं। सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू फाइंड योर ओन पॉजिटिव्स एंड स्ट्रेंथ। और वो आप जब प्रोग्रेस ट्रैक होगा ना, यहाँ पे प्रोग्रेस हब पे जब आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करोगे, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप बिजनेस एनालिसिस में कैसे कर रहे हो, पाइथन में कैसा कर रहे हो, या स्टैटिस्टिक्स में कैसा कर रहे हो। तो यू विल बी एबल टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑल्सो। तो आइडिया ये है कि बैच इज वन, ठीक है, देर इज नो सेपरेट बैच, बिकॉज आवर टाइम इज लिमिटेड, राइट। और oh yeah, product analyst. So देखो, analyst, data analyst you got it. Business analyst are more on the dashboarding side, Tableau, Power BI, all of that. Product analyst is ये एक intermediate role है. It is a very niche, कुछ कंपनियों में। इसमें यू ट्राई टू, देखो दो दो एंगल है प्रोडक्ट एनालिस्ट देखने का। वन इज द एक्चुअल फंक्शनल साइड एंड वन इज द टेक्निकल साइड। A functional product analyst tries to analyze the feature of any product. जो भी कंपनीज SaaS कंपनीज हैं, कंपनीज दैट आर सर्विंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और कंपनीज दैट आर D2C और पैकेज्ड कंपनीज, वहाँ पे उनका कुछ प्रोडक्ट है, कुछ ऑफरिंग है। जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक इज अ प्रोडक्ट। अब फेसबुक में कौन से फीचर्स अच्छे होंगे, जैसे आपका फीडबैक है, फ्रेंड्स को कमेंट करेंगे तो वो एक लाइन में आएगा कि वो टैब होके कमेंट्स के अंदर कमेंट्स आएगा। सो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट सर्टेन फीचर। अब इसको यू हैव टू मैरी इट विद द एनालिटिकल नॉलेज। सो यू टेक द डेटा, you analyze the feature usage data, and you make recommendation or choices around product improvement. So most of the time functional product analysts do this kind of job. तो बेसिकली इट इज़ अ डेटा, वो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का सैंडविच है। यू आर मिक्सिंग योर सम बिजनेस नॉलेज एंड सम डेटा स्किल्स। तो आप डेटा रैंगलिंग कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर, डाउ जो होता है, डेली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर, यूजर्स का यूजेस पैटर्न, द फीचर दैट दे आर यूजिंग। एट द सेम टाइम बिजनेस साइड में क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वन वे टू लुक एट प्रोडक्ट एनालिटिक्स और प्रोडक्ट एनालिस्ट। Then there is a second way of looking at a product analyst, that is being, if you want to make a career as a project or product manager. Now product manager or project manager, these are people in any company जो बाकी सारे टीम को एक साथ बाइंड करते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में एक डेवलपमेंट टीम होगी, एक बिजनेस टीम होगी, एक डेवऑप्स टीम होगी, आपकी एक डेटा इंजीनियरिंग टीम होगी, राइट। सो देर आर मल्टीपल टीम, बट यू नीड समवन हु इज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन ऑल द टीम। उसको सारी टेक्नोलॉजी पता है, सारा स्टैक पता है, एंड ही इज काइंड ऑफ ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो दोज रोल्स आर प्रोजेक्ट मैनेजर। पहले क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते थे, दे हैव टू गेट द सर्टिफिकेट अराउंड PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट जब से हम AI प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, या कंपनी जब से AI प्रोडक्ट बनाने लगी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव टू नो अ लॉट अबाउट AI कैपेबिलिटीज। क्योंकि आपको ML इंजीनियर्स की भी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जब आप डेटा इंजीनियरिंग टीम से बात कर रहे हो तो आपको डेटा इंजीनियरिंग की भी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जब आप बिजनेस एनालिस्ट से बात कर रहे हो तो आपको बिजनेस एनालिस्ट की भी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग टीम बोलेगी हमारे पास ये डिपेंडेंसी है, बिजनेस टीम ने हमें मैट्रिक डिफाइन करके नहीं दिया है तो हम स्टक हैं। और बिजनेस एनालिटिक्स टीम बोलेगी डेटा इंजीनियरिंग ने ये पाइपलाइन नहीं बनाई है, ये सोर्स ऑफ ट्रूथ मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं मैट्रिक्स नहीं दे सकता हूँ। सो इन बिटवीन हाउ डू यू रिजॉल्व दिस, आप इन दोनों टीमों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो ऑल दीज स्किल्स आर प्रोडक्ट एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। हाँ, AI PM इज अ वेरी गुड रोल। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप BA और DA के स्किल्स को मजबूत करो, प्रोडक्ट एनालिस्ट का रोल आपको मिल जाएगा। कई कंपनियों में प्रोडक्ट एनालिस्ट का रोल डिस्गाइज होता है, दे डोंट इवन एडवर्टाइज प्रोडक्ट एनालिस्ट, ईदर द डेटा एनालिस्ट बिकम्स ए प्रोडक्ट एनालिस्ट और यू कैन ट्रांजिशन इट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखो आइडिया ये है, ट्राई टू बी फुल स्टैक।
आप अपना स्ट्रेंथ देखो और 2-3 चीज़ें जानो, ताकि जब भी आप टारगेट कर रहे हो नौकरी, तो एटलीस्ट टारगेट 3 एरियाज। जैसे इफ आई एम नॉट वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, I will try to target product analyst role, data analyst role, and business analyst role, all the 3 roles. क्योंकि मुझे SQL भी आएगी, Tableau भी आएगी, Power BI भी आएगा. I will learn Google Analytics, I will learn Adobe Analytics, I will learn Web Analytics, I will learn Marketing Analytics, and we will give you the resources. हम आपको लिंक्स वगैरह देंगे. How do you learn it? But then you develop. आप तीनों चीज़ टारगेट करो. बोल रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा था. So thank you. ठीक है. तो एग्जैक्टली गाइज, इस वन कोर्स, आप पूरे कोर्स को एक लाइन से जैसे शेड्यूल्ड है, अटेंड ऑल द शेड्यूल्स, और विद इन अ मंथ, लाइक गिव इट सम टाइम, आप 1-2 हफ्ते सारी चीज़ें पढ़ो, आप पाइथन, सिक्वल, स्टैट्स, आप सब कुछ पढ़िए, एंड देन यू टारगेट बिगर रोल. सो यू टारगेट एनालिटिक्स नॉन प्रोग्रामिंग रोल. दूसरा आइडिया होगा जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, I will advise them to target data engineer, machine learning engineer, data scientist, and data architect. All the 4 roles. आप चारों रोल टारगेट करो. आप डिस्क्रिप्शन पे मत जाओ. एंड वी विल टेल यू द ट्रिक्स कि इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे को कैसे मॉडिफाई करना है. आप 4-5 रेज्यूमे बना लो. अक्सर लोग एक ही रेज्यूम बनाते हैं. 2-3 महीने बाद हम आपको सिखाएंगे कि यू मेक एटलीस्ट 4 डिफरेंट रेज्यूम, और कब किस एरिया के लिए कौन सा रिज्यूम चिपकाना है, और इंटरव्यू से पहले कब किस चीज़ को थोड़ा ब्रशअप कर लेना है. सो वन प्रोग्राम आप खुद डिसाइड करिएगा इस प्रोग्राम में, विच आर द एरियाज दैट यू हैव टू फोकस मोर, एंड विच आर द एरियाज वेयर यू हैव टू बी. उतना मतलब मुझे मैथ उतनी नहीं समझ में आती है, तो मैं उतना मैथ में एफर्ट नहीं मारूंगा. बट अगर आपकी मैथ और स्टैट्स बहुत अच्छी है, all the people on this call, if you are lucky to have good math and stat skills, तो you are in the best spot, क्योंकि आप AI में सबसे आगे जा सकते हो. Most of the things at algorithm level can be easily and only done by people who are very good in math and stats. अभी आपको ये चीज़ें थोड़ा उतना माइंड में सिंक नहीं करेंगी, बट आप सब लोगों ने LLM का नाम सुना है, राइट? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एन LLM. मॉडल्स हैं, दे आर बेसिकली ऑल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर ट्रांसफार्मर मॉडल्स. ठीक है. बट आप ये मान के चलो, दुनिया की आबादी है 800 करोड़. वी आर 8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. 800 करोड़ में से केवल 3000, ओनली 3000 पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ are capable of building a LLM model. और उन 3000 लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है. उनकी सैलरी मेरी सैलरी से भी ज़्यादा है. इट डिपेंड्स कि अब, बट उसके लिए आपका मैथ और स्टैट्स बहुत अच्छा होना चाहिए. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप वही करो, बट अगर आपका मैथ स्टैट बहुत अच्छा है तो दिस इज एन एग्जाम्पल. देन LLM को अगर हम छोड़ देते हैं, वी टॉक अबाउट रैग. दुनिया में मुश्किल से 8 या 10,000 लोग ही हैं जिनको रैग बनाना आता है एंड टू एंड. And if you can be one of those 10,000 people, there is no way कि आपको नौकरी ना मिले. ठीक है. तो and there are different pockets. There are many areas in GenAI, ML, जहाँ पे if you are very good in mathematics, statistics, problem solving conceptually, and अभी आप पेशेंस रखो, we will get to know all these things in another 1 to 2 months. And when you are submitting your assignment, we will also know कि किसका मैथ अच्छा है, किसका स्टैट अच्छा है. आपको डैशबोर्ड पे तो दिखेगा कि आप किसके क्लास, किस सब्जेक्ट के क्लास अच्छा कर रहे हैं. Anybody who is attending today and who has registered on the portal, go and submit this request attendance for today. You will get the credit for your attendance. So I think we have done enough of onboarding. If you still have any question related with onboarding, with the software, with the portal, you write an email. आप Siskriti contact@siskriti.in पे आप मेल डालो. अब SQL 101 को ले लेते हैं, because I want to give you some food for thought, जिस पे at least आप आज कुछ प्रैक्टिस करो, and tomorrow we are going complete hands on.
tomorrow is programming 101, right? Theory. So we will completely आप prepared हो क्या ना tomorrow. Everybody try to join using a laptop. आप लैपटॉप से ये मीटिंग ये जो भी लाइव क्लासेस हैं आप लैपटॉप से लीजिए, ताकि यू डू द एक्सरसाइज हैंड्स ऑन. आपको पोर्टल वगैरह भी, हमारा ये जो पोर्टल है ये भी मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल पे चलेगा, बट इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेस्कटॉप. इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट. हम फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसा तो प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं कि हमें यूज़र को मोबाइल एक्सपीरियंस देना है. It is optimized for desktop experience. We will do complete hands-on on the software programming. और जिन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ा है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एटलीस्ट 3 या 4 कोर्स किए होंगे बीटेक या एमसीए में. फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, कुछ लोगों ने सी प्लस प्लस और जावा 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी. और आप में से 90% लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ कि पाइथन में आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया होगा. We will start from the basic. 15 मिनट में हम बेसिक कवर करेंगे, but in next 20-30 minutes and in another 1 hour we will go to a pretty good level of Python code लिखेंगे. So same thing today we want to do on the SQL side. SQL इसलिए है because देखो डेटा साइंस, AI, ML सबके पीछे एक ही चीज कॉमन है, and that common thing is data. Okay, there is no data science without data, there is no AI without data. तो data is the fundamental concept. अब data के लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ and I would like a engagement on this. जिसको जिसको आता है, all of people raise your hand. Why do we use a database? हम database का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Why can't we put all our data in Word or Excel file? हम flat file में अपना सारा data क्यों नहीं रखते हैं? Why do we need a database to store data? So आप लोगों ने जो भी आंसर दिए हैं, all of that answer can be grouped in one of these 4 category, right? Now A stands for atomicity. Right. C stands for your consistency. I stands for your integrity and D stands for your durability. इसलिए बनाते हैं डेटाबेस में क्योंकि हमारा रिपीटेशन कम से कम होने का, जो रिडंडेंसी रिड्यूस करने का है. यस, वी रिसीव द ऑब्जेक्टिव. तो आप जो बोल रहे हो वो सही है. लेट मी टेक माई वर्ड बैक, यू आर करेक्ट. However, the fundamental reasoning, जो एटॉमिसिटी मेंटेन करने के पीछे जो आपका रीजनिंग है, that reasoning is related with reduced redundancy. Okay? ये चीज आपको समझ में आया कि हम मतलब एटॉमिसिटी अचीव कैसे करते हैं. इस कॉन्सेप्ट को एक और नाम से आप लोगों ने डेटाबेस में पढ़ा है. कैन यू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम एक टेबल को कई टेबल में पार्टीशन करते हैं. हम टेबल को डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल टेबल्स. नाउ व्हाई डू वी डू नॉर्मलाइजेशंस? 100% करेक्ट. नाउ व्हाई डू वी डू इट? हम ऐसा करते क्यों हैं? ठीक है, एटॉमिसिटी अचीव करने के लिए, रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए. बट एक इससे बड़ा रीजन, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, दिस इज इन द कॉलेज, आप जो कुछ बोल रहे हो दिस इज कॉलेज इन्वायरमेंट में 100% एक्यूरेट है. अब आप इसको समझो, जब आप जॉब में हो तो जॉब में चैलेंज ये आएगा कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो यू कैन पार्टीशन इट इनटू एज मेनी स्मॉलर टेबल्स एज पॉसिबल, जिसको परफेक्ट नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें आपने क्लास में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ, राइट? तो आप थ्योरेटिकली तो बीसीएनएफ तक जा सकते हो, बट हम जॉब में बीसीएनएफ तक नॉर्मलाइजेशन करते नहीं हैं. we stay somewhere in the middle. हम पूरा का पूरा ग्रैनुलर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं. उसका रीजन ये है, आप ऐसे समझो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जितना ज़्यादा टेबल पार्टीशन होगा, अगर यूज़र को हमें कोई भी रिपोर्ट दिखाना है तो यू हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल. जैसे आपने बोला, आपने एक टेबल में प्रोफाइल रखा है, एक टेबल में आपने ऑर्डर रखा है,
एक टेबल में आपने शिपमेंट डिटेल रखी है और एक टेबल में आपने डिलीवरी डिटेल्स रखी है। अब जब कस्टमर को रिपोर्ट दिखाना है कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट किस दिन ऑर्डर किया था और वो कब शिप हुआ था, तो नाउ यू हैव टू जॉइन ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल, राइट? तो ये जॉइन करने में आपका समय जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर विल गिव यू लेटेंसी। उस आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको समय लगेगा, उसका मेट्रिक होता है लेटेंसी। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू जनरेट द रिपोर्ट। तो आपकी टेबल जितनी फ्रेगमेंटेड होगी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझो डिवाइडिंग द टेबल इनटू एज मेनी पार्टीशन एज पॉसिबल, और ये पार्टीशन बाय कॉलम है। सेकेंड वर्ड आप लोग पढ़ोगे पार्टीशन द टेबल बाय रोज, वो हम इंडेक्सिंग के लिए करते हैं। तो एक सेकेंड, इसको लेट्स टेक इट एट अ वेरी पार्टीशनिंग इज योर डिवाइडिंग टेबल्स बाय रोज, ठीक है? आप एक टेबल है, एक टेबल में सपोज करो मैं डेली का ऑर्डर रख रहा हूँ, आई एम स्टोरिंग द ऑर्डर फॉर एवरी डे। नाउ आई पार्टीशन माई टेबल बाय डेट। उससे क्या होगा कि आई एम पार्टीशनिंग द रोज, दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग ऑफ डेटाबेस। और दूसरा है नॉर्मलाइजेशन विच इज पार्टीशनिंग बाय कॉलम। Normalization is nothing but you are dividing your database into a smaller database with less and less columns. तो जब भी आप कोई क्यूरी कर रहे हो और आपको फुल व्यू चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल, एंड व्हेन यू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स आपका लेटेंसी जाएगा, राइट? आपका प्रोग्राम स्लो होगा। नो राइट सर। एट द सेम टाइम अगर मैं सारा इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में रखूं तो मेरा एटॉमिसिटी हिट होगा, क्योंकि मुझे सब अपडेट करना है, रिपीटेड फ़ोन नंबर, रिपीटेड एड्रेस, सब कुछ अपडेट करना है। आपने ऑर्डर एक किया और मुझे अपडेट करने हैं 50 डिफरेंट रोज के 50 डिफरेंट कॉलम्स, तो आई विल रन इनटू माय इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड एटॉमिसिटी, ये सारी चीज़ें मेरी हिट होंगी। सो रियल लाइफ में क्या होता है, यू हैव टू कम अप विद अ बैलेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड समथिंग वी कॉल्ड एज डी नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन का उल्टा है। डी नॉर्मलाइजेशन इज कि मैं कुछ कुछ टेबल्स को ज्वाइन करके रखूं, राइट? तो सिक्वल समझने के लिए देखिए, क्यूरी लिखना बहुत आसान है। हम लोग जब क्यूरी लिखेंगे ना, तो क्यूरी राइटिंग इज द इजियर पार्ट। जो मुश्किल पार्ट होता है, जो अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, वो होता है ट्राइंग टू रिलेट द कॉन्सेप्ट जो हमने बुक में पढ़ा है और जो हमें जॉब में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और कैसे यूज करना है, राइट? दैट्स वेयर द रियल चैलेंज कम्स इन। अब हमने पढ़ा है कि टेबल को बिल्कुल पार्टीशन कर सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म आप निकाल सकते हो, तो बट उतना पार्टीशन अगर आपने कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर सर्विस अच्छा नहीं करेगा, तो आपका मैनेजर बोलेगा कि ये आपने क्या लिखा है, इट इज़ नॉट वर्किंग, राइट? तो we'll have to take a balance between these three things, and these three things are highly related with our first bucket, atomicity. अब देखो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक फाइल में करना बड़ा मुश्किल था। एक फाइल में बड़ा मुश्किल है कि एक एक्सेल में मैं 10 कॉलम रखूं, अगले एक्सेल में 20 कॉलम रखूं, ऑन द फ्लाई मैं दोनों का वी लुकअप कर लूं। एनालिसिस के लिए मैं कर सकता हूं, बट टू सर्व दो और कॉन्सेप्ट आप लोग जानिए। OLTP कितने लोगों ने सुना है? नहीं, लेट्स कीप क्लाउड असाइड, हम लोग क्लाउड को अभी बाद में रखते हैं। क्लाउड ऑन प्रेम हाइब्रिड, विल कीप इट सेपरेट। इवन ऑन प्रेम हो चाहे क्लाउड हो, दोनों ही केस में हमारा आप ये मान के चलो, OLTP इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये हमारा ऑन प्रेम भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा। देखो, क्लाउड इज सेम थिंग एज मेरे घर का कंप्यूटर, बस फर्क ये है कि वो मेरे घर में नहीं है या मेरे सर्वर हाउस में नहीं है, मेरे कंपनी के सर्वर रूम में नहीं है, वो अमेजॉन के सर्वर रूम में है या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर रूम में है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। अदरवाइज क्लाउड एंड ऑन प्रेम, दे इज बोथ डेटा आर ऑन इंटरनेट, ये दोनों ही इंटरनेट पे हैं। वेन एवर यू आर फेचिंग एनी डेटा, वो है इंटरनेट में ही। बस आप ऑन प्रेम ऐसा समझ लो कि ये सेल्फ मैनेज्ड है,
ये आप अपना खुद का मैनेज कर रहे हो तो इट इज ऑन प्रेमाइस, योर प्रेमाइस मतलब आपकी प्रॉपर्टी, इट इज ऑन योर प्रॉपर्टी, एंड क्लाउड मीन्स समबडी एल्स इज डूइंग फॉर इट, और आप वहां से रेंट ले रहे हो या आप वहां से बोरो कर रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। बट दोनों ही केस में OLTP इज द सिस्टम जो आपका सर्विस करता है ट्रांजैक्शंस ऑफ योर वेबसाइट, या आपका प्रोडक्ट, या आपका जो SaaS प्रोडक्ट है, या आपका जो भी टूल है, वो कस्टमर से जब इंटरेक्ट करता है, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, यू आर टेकिंग सम डेटा, यू आर गिविंग सम डेटा, तो ये जो आप जहां पे भी स्टोर कर रहे हो टेबल्स में, उन टेबल्स का सिस्टम इज कॉल्ड OLTP। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि अब एवरी डे जब आपने ट्रांजैक्शन, जो भी हमारे कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन किया, एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बैच प्रोसेस रन करके ये सारा ट्रांजैक्शन मैं डंप कर लूँ किसी स्टोरेज में, मतलब अलग मेरे प्रोडक्शन सिस्टम के बाहर, दैट बिकम्स वेयर हाउस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, दे वर्क ऑन द वेयर हाउस डेटा। प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, they work on the OLTP system. So this is where business analyst work. BA and DA, they work on warehouse data, which is the historical data dump, and OLTP is real time transactional production system live data. ये उसका फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, बट मैं उसको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो। इट इज द ऑनलाइन लाइव प्रोडक्शन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका SC और इंजीनियर्स काम करते हैं। ज़्यादातर जब हम वेयरहाउस में डेटा रखते हैं तो हम डीनॉर्मलाइज रखते हैं, सो आई विल मेक इट सेम कलर। जब हम OLTP सिस्टम्स में, जो हमारा ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, उसमें जो हमारा डेटा होता है वो होता है हमारा, तो जो वेबसाइट पे जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वो डेटा जब डेटाबेस में स्टोर होता है तो वो डेटाबेसेस फ्रेगमेंटेड होते हैं और उनको ज्वाइन करना पड़ता है। और जब कोई डेटा एनालिस्ट एनालिसिस करता है तो वो जो डेटा उठाता है वो वेयर हाउस से उठाता है जहाँ पे ऑलरेडी डेटा जॉइंड होता है। तो हमने एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम डेटा को पार्टीशन करके सॉल्व कर ली। जो और नॉर्मलाइजेशन आपका है पार्टीशनिंग बाय कॉलम, वो आपके ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम में है। वेयर हाउस में डेटा जब डीनॉर्मलाइज होता है तो भी बहुत हैवी होगा, उस पर क्यूरी करना मुश्किल होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पार्टीशनिंग बाय रोज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेयर हाउसेस डेटा होते हैं, दे आर पार्टीशन बाय, ठीक है। अब आप लिंक समझो, मेरा होल आइडिया था कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बट दे आर ऑल लिंक्ड। वेयर हाउस डेटा इज अ डीनॉर्मलाइज डेटा और इट इज ऑल्सो पार्टीशन बाय रोज, और इस पार्टीशनिंग बाय रोज को एक और कॉमन नेम आप यूज करते हो, उसको होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्स डेटा। Indexing is nothing but when you are partitioning it by row, और आप उसका एक order dividing the table into smaller tables with lesser columns। जैसे प्रोफाइल टेबल में हमने यूजर और यूजर का नाम एड्रेस रखा, और दूसरा टेबल हमने एक ऑर्डर टेबल बनाया, वहां पे हमने यूजर का नाम और उसका ऑर्डर रखा। या आपके लर्निंग पोर्टल के केस में मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन रखी, और एक टेबल बनाया जिसमें मैंने आप लोगों के टास्क और सबमिशन से स्टोर किए। सो आई एम डिवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू मल्टीपल टेबल, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पार्टीशनिंग द कॉलम्स। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी मुझे एंड टू एंड रिपोर्ट दिखाना है, आप ऐसे समझो, जब भी आप यहाँ पे जाके आप अपना रिपोर्ट देखते हो, तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए द डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल टेबल। आपका डेली अटेंडेंस डेटा, आपका असाइनमेंट डेटा, होमवर्क डेटा, सब कुछ आ रहा है। सो ऑल द टेबल्स इन द बैक एंड आर गेटिंग जॉइंड, राइट। जब आपकी टेबल ज्वाइन होती हैं तो यू आर रनिंग रन टाइम जॉइंस। आप सिक्वल क्यूरी में ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, जो हम लोग पढ़ेंगे, बट यू आर ज्वाइनिंग इन सिक्वल। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हमने डेटा को ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया। आई मेड द टेबल बिगर, मैंने सारे कॉलम एक ही डेटा में रख दिए, जो रिडंडेंसी होनी है वो रिडंडेंसी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई लेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपीट, एंड वो रिपीटेड इंफॉर्मेशन है बट उसको यूजर से हमें रोज रोज अपडेट नहीं कराना है।
क्योंकि वो हमारा वेयर हाउस में है, वो स्टेल डेटा है, वो ओल्ड डेटा है, वो व्यू ओनली डेटा है, उस पे हमारे एनालिस्ट लोग जाके केवल क्यूरी कर रहे हैं, उसको केवल व्यू कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भी समझो कि जो वेयर हाउस का डेटा होता है वो व्यू ओनली होता है, और जो आपका OLTP डेटा होता है वो रीड राइट उसमें होता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ अ ऑनलाइन लाइव प्रोडक्शनल ट्रांजैक्शनल डेटा जिसमें रीड राइट हो रहे हैं। उन रीड राइट को फास्ट बनाने के लिए, जॉइंस को कम करने के लिए, हम टेबल को बाय कॉलम डिवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। वेयर हाउस में इसका उल्टा होता है, हमें डेटा पे एनालिसिस करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन टुगेदर चाहिए होती है, इसलिए हम सारे कॉलम्स को ज्वाइन कर लेते हैं, डेटा को रिडंडेंट बना लेते हैं, लेकिन चूंकि उसमें रीड राइट नहीं करना है, हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी क्योंकि व्यू ओनली एक्सेस है। तो दैट इज डी नॉर्मलाइजेशन वेयर हाउस डेटा विद एनालिटिकल कैपेबिलिटी, इसीलिए इसको कभी कभी हम CDW भी बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस, कस्टमर डेटा वेयर हाउस। मतलब यह है कि हमारा जो भी स्टेट है वो हमेशा बेस्ट स्टेट होना चाहिए। हमारा डेटा जो अभी रिजल्ट दे रहा है और जो 2 मिनट बाद रिजल्ट दे रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी आप बैंक में, अगर आपका बैंक में अगर पैसा जमा है तो आप इमेजिन करो, अगर आपने मॉर्निंग में चेक किया, बैंक ने बताया आपके पास है 1 लाख रुपए, आपने शाम को चेक किया, बैंक ने बताया आपके पास है 10,000 रुपए, आपने 1 घंटे बाद चेक किया, बैंक बताया आपके पास है 50,000 रुपए, तो आप बोलोगे क्या बैंक है भाई, मेरे पास 1 लाख है कि 50,000 है कि 10,000 है, पहले तो आप टेंशन में आ जाओगे कि बाकी पैसे गए कहाँ। तो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट स्टेट। अब आप सोच रहे होगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा क्यों होगा? बट रियल लाइफ में, वेलकम टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ये इतना आसान नहीं है। ये इनकंसिस्टेंसी फिर से होती है इस भाई साहब की वजह से, लेटेंसी की वजह से। होता ये है कि जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो, या जब भी आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में यूज़र ने एंटर किया इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे समझो आपने फॉर्म बनाया, यूज़र ने इन्फॉर्मेशन एंटर किया, आप इसको डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो। अब डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन जब स्टोर हो रहा है, तो सपोज करते हैं डेटाबेस है D1। अब चैलेंज ये आती है, चूंकि हमें चीज़ें फास्ट करानी है। देखो, अगर लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं है तब तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। ये जितना भी थ्योरी है वो टेक्स्ट बुक का, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। रियल लाइफ में प्रॉब्लम वही आती है जहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक्स की थियोरी ब्रेक होने लगती हैं, एंड वी हैव टू फिगर आउट द वेज। अब होता क्या है कि सपोज करो आपकी कंपनी बड़ी है, आपके कुछ कस्टमर इंडिया में हैं, कुछ कस्टमर US में हैं, कुछ कस्टमर यूरोप में हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप डेटा को रखोगे कहाँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑन प्रेम या प्रीमाइस का। अगर आप डेटा को प्रीमाइस में रखना चाह रहे हो तो आपको 3 अलग अलग ऑफिस खोलनी पड़ेंगी। ये मान लो है USA। गाइज, समझ में आ रहा है ना? आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइज, आई एम ट्राइंग टू ब्रिज योर textbook concepts with the real life practical challenge। मान लो ये आपकी 3 ज्योग्राफी हैं, USA है, यूरोप है, इंडिया है। अब आपको कस्टमर आपके इन तीनों देश में है, राइट? यू हैव कस्टमर्स एवरीवेयर। yes, अब sir. इन तीनों लोगों को आपको सर्विस दे रहे हो आप, अपने सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के जरिए। अब इन तीनों का डेटा आपको एक डेटाबेस में स्टोर करना है। अगर मैं एक डेटाबेस यूज करूंगा तो वो डेटाबेस मुझे चुनना पड़ेगा कि मैं किस ज्योग्राफी में रखूं। ठीक है, इंडिया में डेटाबेस रखूं या यूरोप में रखूं या US में रखूं। ठीक है, क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो अब आप बताओ आप डेटाबेस कहाँ रखोगे? अगर आप वो बिजनेस के मालिक हो, आपके कस्टमर हैं, वो 3 अलग अलग कंट्री में हैं, और ये तीनों कंट्री एक दूसरे से कई हजार मील दूर हैं। इंडिया और US के बीच में दूरी करीब 14,000 माइल की है। 14,000 यानी आप 20,000 किलोमीटर मान लो। US इज रफली 20,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया। यूरोप मान के चलो कि वही 10,000 किलोमीटर के आसपास है।
तो इतने दूर आप डेटाबेस को कहाँ रखो, क्योंकि जितना दूर आपका डेटाबेस होगा उतना आपके सॉफ्टवेयर में लेटेंसी होगी। इसीलिए हमारे संस्कृति के लर्निंग पोर्टल पे थोड़ी लेटेंसी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो यूएस में है, आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो, तो थोड़ी लेटेंसी है। ठीक है, तो अब आप बताओ आप डेटा को कहाँ रखोगे। Suppose we create an US region and Europe region and India region. बहुत अच्छी बात, अब आपने मुसीबत मोल ले लिया। आपने एक डेटाबेस रखा है यूएस में, उसका नाम हम रखते हैं D1। एक डेटाबेस है यूरोप में जिसका नाम है D2, और एक डेटाबेस है इंडिया में जिसका नाम है D3। ठीक है, अब Sir, तीनों डेटाबेस में डेटा तो सेम ही होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा D1 में जो डेटा है और D2 में जो डेटा है और जो D3 में डेटा है वो अलग अलग हो। अगर वो अलग अलग हो गया तो मेरा sir, डेटाबेस का जो स्टेट है वो hello. तो उससे एक लेवल नीचे है। जब आप एपीआई से डेटा को एक्सेस करते हैं तो एपीआई को एक टाइम लगता है डेटा को फेच करके सर्व करने में, उस टाइम को हम बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है, आपका काम है इस लेटेंसी को मिनिमाइज करना। तो लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए अक्सर डेटाबेसेस की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है, वी रेप्लिकेट द डेटा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अलग है, जो हम लोग कभी समझेंगे अच्छे से एक आध हफ्ते बाद। ये है रेप्लिकेटेड डेटाबेस, इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेटेड डेटाबेस। ये आप ऐसे समझो कि जो भी आपको दिखता है ना सरफेस पे, ये सब उनसे एक नीचे की कहानी है। वी आर जस्ट वन लेयर डाउन। ये सही बात है कि आप सर्वर कहीं पे भी रख दो, एक्सेस आप इंटरनेट के Yes, जरिए sir. कर रहे हो। ठीक है, आप इंटरनेट से एपीआई ले रहे हो, आपको डेटा फेच हो रहा है, बट वो डेटा फेचिंग फास्ट हो, लेटेंसी आपकी कम से कम हो। इसके लिए इंटरनली प्रॉब्लम होता है जब हम चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने में अब चैलेंज ये आएगा कि D1, D2, D3 तीनों में सेम डेटा होना चाहिए, यानी इनका स्टेट बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। बट जब भी कोई यूजर इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो सबसे पहले कौन अपडेट होगा? D3। और बाद में D3 D2 को बोलेगा भाई ये रिकॉर्ड मुझे मिला है, तुम भी अपडेट हो जाओ। और D3 कम्युनिकेट करेगा D1 से और बोलेगा ये रिकॉर्ड मिला है, तुम भी अपडेट हो जाओ। ठीक है, तो D3 अपडेट करेगा। लेट्स जैसे अगर यूरोप में हो रहा है तो D2 में ट्रांजैक्शन सबसे पहले होगा, और जो यूरोप वाला कस्टमर है वो डेटा को अपडेट करेगा D1 में और D3 में। सेम उसी तरीके से जो कस्टमर यूएस में है वो D1 में ट्रांजैक्शन पहले उसका अपडेट होगा, और ये इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन, और ये डेटा प्रोपोगेट होगा D2 और D3 में। इन सारे प्रोपोगेशन के दौरान डेटा करप्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन यूरोप में तो हुआ बट वो यूएस और इंडिया में प्रोपोगेट नहीं हो पाया, मतलब यूएस इंडिया का जो डेटाबेस कॉपी है उस कॉपी में प्रोपोगेट नहीं हो पाया। और अगर उस कॉपी में प्रोपोगेट नहीं हो पाया तो फिर D2 में भी उस डेटा को सरवाइव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारी कॉपीज इनकंसिस्टेंट हो गई। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमें डेटाबेस सॉल्व करके देता है, फाइल सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकती हैं। इज इट बेटर? ये आपको पहले से ज्यादा क्लियर हुआ? कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम रेप्लिकास बनाते हैं। रेप्लिकास हम रियल लाइफ में बनाते ही बनाते हैं क्योंकि हमें लेटेंसी सॉल्व करनी होती है। और इसके लिए अगर हम फाइल सिस्टम यूज करते, अगर हम ये मैंगो डीबी भी सॉल्व करता है बट यूजिंग अ डिफरेंट एल्गोरिदम, बट कहानी ये है कि ये सारी चीज़ें डेटाबेस में करनी बहुत ईजी हो जाती है। आप पोस्टग्रेस सिक्वल को लेते हो और जो रेप्लिकेशन का काम है माई सिक्वल सर्वर या पोस्टग्रेस सिक्वल ये सब ऑटोमेटिक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। आप फ्रंट एंड पे आपको लगता है मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, हो रहा है, एपीआई से कॉल कर रहा हूँ, मुझे कंसिस्टेंट रिकॉर्ड मिल रहा है, बट बैकएंड में इसके लिए डेटाबेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसको एल्गोरिदम्स बनाने पड़ते हैं कि अगर कोई कॉपी रेप्लिकेट हो रही है तो वो हर जगह रेप्लिकेट हो, अगर किसी एक में रेप्लिकेट नहीं हो पाए तो वो रोल बैक हो जाए और वो ट्रंकेट हो जाए। तो ये सारा जो है वो कंसिस्टेंसी के
उसमें आता है. सो एवरी स्टेट शुड बी अ वैलिड स्टेट और इट शुड रोल बैक. ठीक है. तो ये कहानी आपकी कंसिस्टेंसी में सॉल्व हो जाती है. दिस इज वाई वी यूज कंसिस्टेंट डेटाबेसेस. अब क्विकली हम इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी को टच करते हैं, फिर मैं आपको एक रिसोर्स लिंक दे दूंगा जहां पे आप इन सब चीज़ों को और डिटेल में समझ सकते हैं. एंड देन वी विल कंटिन्यू इन आवर सेकेंड लेक्चर विद मोर प्रैक्टिकल. ड्राइंग बोर्ड पे आई कैन राइट एंड आई कैन एक्सप्लेन यू इट इन अ बेटर वे. एक्सेल में समझाना थोड़ा मुश्किल है. बट आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? मतलब आपको समझ में आया कि जो हमारी थियरी है और जो प्रैक्टिकल है उसमें मिसमैच क्यों हो जाता है, एंड व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल. बताओ. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कॉन्करेंसी. अगर कई लोग एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो मेरा काम रवि के काम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, रवि का काम मेरे काम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. यानी डेटाबेस में, सेम डेटाबेस में अगर मल्टीपल यूज़र ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने D2 को यूरोप में रखा है और मेरे सारे यूरोपियन कस्टमर D2 से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, और अगर यूरोप में मेरे 10,000 कस्टमर्स हैं, तो वो 10,000 कस्टमर एक साथ अगर डेटाबेस से ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके ऑपरेशंस आपस में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए. ये इंश्योर करता है डेटाबेस. फाइल सिस्टम में ये करना बड़ा मुश्किल होता है. शेयर पॉइंट कर देता है बट वो करप्ट हो जाता है. शेयर पॉइंट क्या है कि आप एक फाइल को मल्टीपल लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो. लिंक फाइल का गूगल डॉक, राइट, आप गूगल ड्राइव पे फाइल डाल के शेयर करते हो. एवरीवन कैन गो एंड अपडेट इन द सेम फाइल. सब कोई उसी फाइल में अपडेट कर सकते हैं. तो देखो, ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं पहले डेटाबेस में चालू हुई थी, इसको आज की डेट में फाइल सिस्टम में काफ़ी हद तक घुसा दिया गया है. जैसे एक्सेल काफ़ी हद तक आपको एटॉमिसिटी और वो चीज़ें देने की कोशिश करता है. बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्करेंसी भी मिलती हैं शेयर डॉक वगैरह में, बट इन अ लिमिटेड कैपेबिलिटी. डेटाबेस आपको 100% कॉन्करेंसी कंट्रोल देता है, और उसके लिए आपने डेटाबेस में पढ़े होंगे कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं. कब अगर डेडलॉक हो गया तो डेडलॉक कैसे रिजॉल्व करना है. हमें थियरी में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बट आप ये सोचो कि इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर 1,000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और कई बार अगर उनके काम एक दूसरे से ओवरलैपिंग हैं, तब भी उनकी ऑर्डरिंग क्या होगी, किस ऑर्डर में वो हो कि चीज़ें कंसिस्टेंट रहें, मतलब ख़राब ना हो, एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें, चीज़ें आइसोलेशन में 100% सक्सेसफुली रन हो. दैट इज़ योर इंटीग्रिटी. ड्यूरेबिलिटी है कि आपका जो भी डेटा है उसका आप अच्छे से बैकअप ले सको, इंक्रीमेंटल बैकअप ले सको, और इंक्रीमेंटल बैकअप आपस में मर्ज कर सको. करेक्ट. तो ऑल दोज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस. तो बेसिकली हम डेटाबेस को इन 4 वजहों से यूज़ करते हैं. इट इज़ बेटर टू, मतलब नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन करना आसान होता है, रेप्लिकास को कंसिस्टेंट रखना आसान होता है, चीज़ों को कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को एक साथ कराना आसान होता है, एंड टू टेक इंक्रीमेंटल बैकअप और उनका आर्काइव और रेस्टोरेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी. यही काम कोड के लिए गिटहब करता है. आप फाइल लिखते हो, आपके फाइल के वर्जन सिस्टम्स को मैनेज करता है. कल के डेट में मान लो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, गिटहब पे हम क्यों यूज़ करते हैं गिटहब को? आप एक कोड लिख रहे हो और कोड लिखने के बाद आपने कोई नया फीचर जोड़ दिया और कोड मेसअप हो गया, तो गिटहब आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपने पहले एक चेक पॉइंट बना रखा था, एक आपने कमिट पॉइंट बना रखा था, तो यू कैन रोल इट बैक टू द ओरिजिनल कमिट, और वहाँ से आप उसको ब्रांच आउट करके एक नए तरीके से आप अपना फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो. और ये सारे ब्रांचेस वो हम लोग पढ़ेंगे. तो कुल मिला के इट गिव्स यू अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स. सो ऑल दोज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेसेस. इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं, और इसलिए जब हम सिक्वल लिखते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है. कोई डाउट? बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया टुडे, कि जितना भी आपने स्कूल में डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको थोड़ा आप और गहराई से जानो कि ऑल ऑफ दोज थिंग्स ब्रेक इन इन प्रैक्टिकल लाइफ. वो सारी थियरी होल्ड नहीं करती हैं, और उनके वर्क अराउंड
we have built mechanisms जिससे हम उनको tackle करते. We'll make it interesting going forward. Every day we will do something more interesting, okay? When the doors close, And the idea is कि theory तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही है, right? How do we take it to the next level? तो I'm going to share a resource. आप सभी लोग जो लोग संस्कृति के पोर्टल पे हैं, डैशबोर्ड पे हैं, I'll put the link there. Here itself, I'm adding a post. आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. This is a YouTube channel जहाँ पे प्राइवेटली हम अपने स्टूडेंट्स के साथ some of the materials शेयर करते हैं. You can watch it. It's a database fundamentals. काफ़ी चीज़ें जो मैं यहाँ पे एक्सेल में समझा रहा था, you will get it in a whiteboard and will help you. और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग उसको डिटेल में लेंगे ही लेंगे. एंड बेसिक ऑफ SQL. तो लेट मी नो इफ यू ऑल कैन एक्सेस दिस लिंक. होना चाहिए, लिंक काम करनी चाहिए. ग्रुप, दिस ग्रुप, एंड इफ आई क्लिक दिस, ओके, या, सो you will have the DBMS basics and select का जो basic है, you'll get to know. तो go through it और we'll continue it from here in our SQL 200. और जो दिलीप शुरू में कहना चाह रहा था, why we have made 100, 200, 300. So those are nothing but different units of the course. तो जैसे अगर हम so these are nothing but different classes. So for SQL we'll try to cover the all concepts and end to end SQL के complicated से complicated query लिखना हम लोग सीख लेंगे in 6 classes. तो you will have SQL 100, 200, 300, 400, 500 and 600. So in 6 different session, concept, basic query, complicated query. आप यकीन मानो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड सिक्वल क्यूरी बोले आपको लिखने के लिए, आप नोट पैड में, टेक्स्ट पैड में बिना AI के हेल्प के वो क्यूरी लिख लोगे. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. सेम थिंग इन पाइथन. यू हैव 10 क्लासेस. यू हैव Pi 100, Pi 200, Pi 300, 400. These are nothing but the different class sections. ये आपको अपने लर्निंग पोर्टल में इनका डिटेल ब्रेकअप भी मिल जाएगा. कब तक to reach giving some instruction, giving this clarity. So if your friends want to join this training session, then you can refer it, because see, 1 or 2 class we can cover, right? Later it is very difficult to address those guys, right? If you want to refer, you can refer. because the cohort is assigned to you, now you can go to your attendance, आपका जो attendance tab है, and here you will have an option to request attendance for today. क्योंकि पहले आपका cohort नहीं था तो attendance नहीं था, but अब आपको cohort मिल गया है तो attendance आ जाएगा. and whoever requested, I mark them as present. और आपको अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपका अटेंडेंस यहाँ पे दिखेगा. ठीक है. लेट मी नो इफ यू रन इनटू एनी प्रॉब्लम, तो आप पिंग करिएगा, एंड वी कैन इवन सॉल्व इट ऑन वेडनेसडे.